السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی و کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور دنیا کے تمام ساز سامان، حیوان، انسان سب کو پیدا کیا۔ یقیناً ہماری جانوں کے اوپر بے شمار انعام و اکرام اسی رب کی طرف سے ہے، جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ وہ جب چاہے تو ہمیں موت کے حوالے کر دے اور چاہے تو ہمیں زندگی میں باحیات رکھے۔ اسی کے انعام میں سے اور اکرام میں سے ایک نعمت یہ درس قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں ہم چنندہ لوگوں کو پسند کیا اور یہ موقع غنیمت عطا فرمایا کہ ہم اس کے کلام کو سننے سمجھنے کے لیے اس مقصد کے تحت جس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، ہمیں یہ موقع غنیمت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عالمین اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کی بارش اور برسات ہمارے اوپر جاری و ساری رکھ، اور جو بھی ہماری چھوٹی بڑی پریشانیاں اللہ عالمین تو ان تمام پریشانیوں سے باخبر ہے، تو ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے، آمین۔ سلسلہ درس قرآن میں گزشتہ ہفتے سورہ آل عمران آیت نمبر 36 تک کی بات مکمل ہو چکی تھی، جس میں آخری جو آیت تھی وہ یہی تھا کہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی عمران کی بیوی کے متعلق گزرا، اور انہوں نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے لڑکی ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا کہ واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہیں لڑکی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہی اس لڑکی کو دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فطرتی فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فطرتی طور پر ہم جو ہے ہماری تخلیق اور لڑکی یعنی مؤنث جو ہے عورتوں کی تخلیق جو ہے اس میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ان کی چند مسائل خصوصی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے فطرتی طور پر کچھ جو ہے فرق رکھا ہے، جہاں جس کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا علیہ الذکر کالانثیٰ۔ اسی میں انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، حضرت عمران کی بیوی نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی۔ یہ بات اوپر میں گزر چکی ہے کہ انہوں نے ایک نظر بھی مانی تھی کہ اللہ اس بچے کو جو پیدا ہونے والا ہے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، نظر مانی تھی۔ نظر میں جب لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت عمران کی بیوی کو حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی خواہش تھی کہ چونکہ اللہ کے لیے میں نظر مانا ہے کہ میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کے لیے، تو لڑکا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، وہ دین کے کام میں آگے آگے رہتا اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پیش رہتا۔ یہاں پہ انہوں نے جو کہا حیرت سے کہ اگر لڑکی ہو جائے، یہ آج کی ذہنیت کی بات نہیں ہے کہ آج کی لڑکی ہو جائے تو ہم اپنے چہرے کو عجیب روکھا سوکھا بنا لیتے ہیں، یعنی گویا لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں اور لڑکا ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم جو ہے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضرت عمران کی بیوی نے جو کہا کہ اللہ میں فلما وضعتھا کہ مجھے لڑکی ہوئی ہے، انہوں نے اس وجہ سے نہیں کہا تھا بلکہ اس وجہ سے کہا تھا کہ لڑکا اگر ہوتا تو اللہ کے لیے زیادہ کام کرتا، کیونکہ جانتے ہیں کہ فطری طور پر مرد عورت سے مضبوط ہوتے ہیں، تو جہاد بھی کرتا، اللہ کے اطاعت بھی کرتا، فرمانبرداری بھی کرتا، دوڑ بھاگ بھی کرتا، ساری چیزیں ان کی نیت میں شامل تھی۔ بہرحال انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اسے اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے، یعنی تو اس کی حفاظت کرنا۔ یہاں پہ نقطہ یاد رکھیے کہ دعا عمران کی بیوی کی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا تھی کہ اللہ جو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں اور ان سے جو نسل یعنی ذریت چلے گی، مطلب ذریت کا استعمال ہوا ہے، ان سے جو بیکا و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اس سے جو ذریت ہوگی اللہ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک دعا کا ایک طریقہ انداز بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم جہاں خود کے لیے یا اپنے گھر بار کے لیے دعا کرتے ہیں
तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह भी हमें, हमारे बाल बच्चे, हमारे बाल बच्चे माँ बाप बनेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनसे बच्चे होंगे, तो जो हमारी ज़ुर्रियत, जो नस्ल चलेगी अल्लाह तो उन्हें तौहीद पर कायम है। ये दुआ हम कर सकते हैं, बड़ी बेहतरीन और प्यारी दुआ है। उसके बाद जब ये दुआ उन्होंने की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा, तो अल्लाह ने कहा आयत नंबर 37 के अंदर 37, फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, उनके रब ने उनके इस दुआ को अच्छी तरीके से कबूल किया। बिकबूलिन हसनी, कबूल उर्दू का भी लफ्ज़ है, हम सबको जानते हैं, और हसन भी उर्दू का लफ्ज़ है। हसन अच्छी तरीके से, अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो अल्लाह ने बयान किया फतकब्बलहा रब्बुहा, उनके रब ने उनसे कबूल कर लिया। और ना सिर्फ ये कि कबूल किया, अल्लाह ने कहा बिकबूलिन हसनी, अच्छे तरीके से कबूल कर लिया, यानी उसकी कबूलियत में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होती, अल्लाह ने कबूल कर लिया। उसके बाद वह अम्बतहा नबातन हसनन, आप उनकी बेहतरीन परवरिश भी देखी। अब मसला ये था कि हज़रत इमरान की बीवी से जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, सवाल ये था कि एक तो उनको शैतानी मरदूद से बचाना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि परवरिश देखें, जिसको हम लोग बहुत ईजी लेते हैं, तरबियत भी कह सकते हैं, परवरिश भी कह सकते हैं। ये आयत करीमा हमें दर्शाता है, हमें ये सबक देता है कि बच्चा हो या बच्ची, इसकी विलादत के बाद जैसे हम तालीम और तरबियत पर जो खर्च करते हैं या जो भी हम उस पर देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, वालेकुम, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या तरबियत बच्चे को दें, परवरिश कैसे दें। ये बहुत अहम चीज़ है। उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनी, उन्होंने सिर्फ यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को तो शैतान से महफूज है। अल्लाह ने कहा कि हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से दुआ कबूल कर ली। उसके अल्लाह ने कहा अम्बतहा नबातन हसनन, और हमने उसकी बेहतरीन परवरिश करने के लिए किसी को दिया, यानी इंतज़ाम कर दिया, बेहतरीन परवरिश का इंतज़ाम कर दिया। और आप जानते हैं कि परवरिश अगर सही ना हो तो याद रखिए कि माँ बाप औलाद होते ही परेशान है। एक परेशानी ये है कि औलाद नहीं हो, यानी जिनकी औलादें नहीं हो रही है वो कितने परेशान है कि अल्लाह औलाद दे, औलाद दे, चाहे जो दे, लड़का दे, लड़की दे, लेकिन ऐसा कर दे कोई मुझे माँ बोलने वाला हो जाए, कोई मुझे अब्बू बोलने वाला हो जाए। एक कितनी खुशी की बात है किसी की औलाद होती है। तो औलाद एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह का वादा है कि अगर कोई नेमत की कदर नाकदरी करेगा तो अल्लाह उस नेमत को छीन देगा। छीनने का मतलब ये नहीं कि औलाद को मौत दे देगा, छीनने का मतलब तरीका ये भी है कि औलाद जो है बददीन हो जाए, औलाद जो है बदतमीज हो जाए, औलाद जो है बिल्कुल अदब और अखलाक से पैदल हो जाएंगे। अब आप परेशान हो जाएंगे उस औलाद को किसी बात को समझाने के लिए, किसी बात को मनवाने के लिए, किसी बात को करवाने के लिए आप परेशान रहेंगे। और इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे माशरे के अंदर हैं कि गार्जियन हजरात, सरपरस्त हजरात अपने मिलने जुलने वालों से अपनी औलाद की शिकायत करते हैं। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो औलाद भी एक नेमत है जो अल्लाह ताला हमें आपको औलाद दे रखा है, वो नेमत है। सवाल ये कि उस नेमत की शुक्रगुजारी कैसे की जाए, संभाला कैसे जाए। अब मिसाल के तौर पर देखें कि जो कीमती अशिया दुनिया के अंदर होती है, जैसे आप ले ना गोल्ड को ले ले, सोना चांदी, तो सोना चांदी की अहमियत हम जानते हैं कि नहीं जानते, किस कदर वो महंगी चीज़ें हैं जो सबों के पास नहीं रहती। चांदी को दरकिनार करके सिर्फ सोना की अगर बात करें तो हम कितना उसको संभाल के रखते हैं, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, ऐसी वैसी और जहाँ तहाँ नहीं रखते। क्यों हम उसकी हिफाजत करते हैं? क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत को हम जानते हैं कि बड़ी कीमती चीज़ है, ये सबों के पास नहीं, अगर है तो इतनी मिकदार में नहीं है ना। मेरे भाई याद रखिए कि औलाद बड़ी बेहतरीन नेमत है। औलाद की भी रक्षा और औलाद की भी हिफाजत ऐसी ही करनी है कि जहाँ का औलाद को ना छोड़ दे, जहाँ का उसको हम पढ़ने के लिए ना भेज दें, उसे दीन की सही समझ मिले, और उसके लिए क्या हम इंतजाम कर सकते हैं, क्या कुर्बानी दे सकते हैं, ये हमें और आपको सोचना होगा। अल्लाह ने सिर्फ उनकी ये दुआ कबूल नहीं की कि हाँ आपने दुआ मांगी थी शैतान से तो हमने महफूज कर दिया। अल्लाह ने कहा अच्छी तरीके से दुआ कबूल की, वह अम्बतहा नबातन हसनन, और हमने उनकी परवरिश जो है बेहतरीन दे दी। अब किनको दी? वकफ़लहा ज़करिया, हमने उनकी किफ़ालत के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम को मामूर कर दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या थे? नबी थे।
किन की परवरिश की बात हो रही है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की। मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश कौन कर रहा है? जकरिया अलैहिस्सलाम। क्योंकि उस वक्त के नबी वही थे जकरिया अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के दीन को लेकर आए थे, तौहीद को लेकर आए थे, इस्लाम को लेकर आए थे। अल्लाह ताला जानता था कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से बेहतर परवरिश कोई नहीं कर सकता। एक नबी ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की। तो अल्लाह के सामने अगर हमारी नीयतों में खुलूस रहेगा तो अल्लाह ताला वसाइल को पैदा करेगा। नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत सुलगता हुआ मसला भी है कि बच्चों का जो मामला है कि हम क्या पढ़ाएं, बच्चों को क्या सिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसला ये नहीं है कि हमारे बच्चे दुनियावी एतबार से कामयाब हो जाए, मसला ये है कि हमारी नस्लें दीनदार हैं। हम ऐसी नस्ल छोड़ के जाएं कि मरने के बाद भी हमारी नस्लें उस दीन पर कायम हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मर्दुल मौत में थे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा था, पूछा था कि माँ ताबुदूना मिन बाद। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि जो प्रॉपर्टी में छोड़ के जा रहा हूँ तुम लोग कैसे बांटोगे, जो जमीन जायदाद है उसमें उसमें तुम तकसीम कैसे करोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बात में लड़ाई झगड़ा मत करना, भाई भाई बन के रहना। उनको एक ही चीज़ खटक रही थी, लाहिक थी होती कि मैं तो अल्लाह की मदद कर रहा हूँ, मैं हयात में हूँ तो बच्चों से कह रहा हूँ कि अल्लाह की मदद करो। सवाल ये कि मेरे मरने के बाद क्या मेरी नस्लें दिलदार रहेंगी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने पूछा माँ ताबुदूना मिन बादी, ये बताओ मेरे बच्चों की तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने कहा था कि नाबुदुल्लाह व रब्बी, मैं हम आपके रब की और अल्लाह की इबादत की। ऐसी नस्लें दुनिया में छोड़ने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने किफालत की जिम्मेदारी, खैर व खबर की जिम्मेदारी किसको दे दी? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। और जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से, मरियम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में खालू लगते थे, खालू थे। उसके बाद अल्लाह ने कहा कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराबा, जब कभी भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हुजरे में जाते थे, किनके? मरियम अलैहिस्सलाम के। जब कभी भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के वालिदा इमरान की बीवी जब जब कभी उनके हुजरे में जाते थे, वजदा इंदहा रिस्कन, तो वहाँ पे क्या पाते थे? रिस्क पाते थे, कोई खाने पीने की अशिया, फल फ्रूट्स। तफसीर की किताबों में यहाँ पर फल का जिक्र किया गया है कि वहाँ पे पाते थे। अब जब फल देखते थे तो काला, तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा या मरियम, ऐ मरियम, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से आया। वो हैरत का इजहार इसलिए करते थे कि चूंकि जिम्मेदार तो मैं हूँ, परवरिश तो मैं कर रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ें हो या दीगर चीज़ें हो, ये सब चीज़ें तो मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, ये चीज़ तो मैं लाया ही नहीं। एक आदमी जिम्मेदार है, वो पानी लाया ही नहीं, यहाँ पानी पहले से अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदार सरपरस्त पूछेगा कि पानी कहाँ से आया, मैं तो पानी लाया नहीं हूँ। तो जब कभी भी कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब, जब कभी भी ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में, तो वहाँ क्या पाते थे? वहाँ रिस्क पाते थे। वहाँ इंदहा रिज़्क़न, उनके पास रिस्क रखा रहता था, और वो चीज़ें क्या थी? फल फ्रूट्स। अब वो कहते हैं काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, है मरियम ये कहाँ से आ गया। कालत, वो कहती हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से। तफसीर की किताबों में मजकूर है कि वो रिस्क जो देखते थे वो फल फ्रूट्स थे, और वो बेमौसमी फल थे। जैसे आम का सीजन नहीं है तो आम रखा रहता है, अंगूर का सीजन नहीं है तो अंगूर रखा रहता है, यानी वो फल मिलता था जो सीजन उसका नहीं चल रहा। सीजन में फल का पाया जाता आम बात, एक फल का सीजन है, मौसम है, मौसमी फल है, अमरूद का सीजन अमरूद हो रहा है, अनार का सीजन है अनार हो रहा है, केले का सीजन है केला हो रहा है, सेब का सीजन है सेब हो रहा है। लेकिन एक सीजन है ही नहीं इन चीज़ों का, दीगर चीज़ों का है, और जो फल का सीजन नहीं है वही फल रखा रहता है। ये तो और ज़्यादा हैरत और ताज्जुब की बात है, समझ रही। इसी लोग पूछते थे कि कोई चीज़ आया कहाँ से, और आया भी तो बेमौसमी फल कैसे आया। तो वो कहती थी हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बिला हिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह जिसे चाहता है बिला हिसाब रिज़्क़ देता है। उसके बाद आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, उसी जगह से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। उसी जगह से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, जगह से, उस गुजरे से जहाँ मौसमी फल रखा हुआ था, दुआ की। उन्होंने दुआ क्यों की? देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं, वो भी चाहते थे कि अल्लाह उनको औलाद से नवाजे, और वो बूढ़े थे, यानी उम्र दराज थे, करीब करीब 70 या 80 साल के थे, 80 या 83 साल के, 80 से प्लस थे।
अब उन्होंने देखा कि मरियम के पास बेमौसमी फल कहाँ से आ गया, जबकि वो मार्केट में पाया नहीं जा रहा, मैं ला भी नहीं रहा हूँ। तो मरियम ने कहा कि तो अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि नबी थे, वो बेहतर जानते थे अल्लाह के ताल्लुक से, उनका अकीदा अच्छा दुरुस्त था कि बेमौसमी फल जब अल्लाह यहाँ दे सकता है तो मेरी चीज़ें क्यों नहीं अल्लाह पूरा कर सकता है, गर्ची वो नामुमकिन इम्पॉसिबल क्यों ना हो। तो उन्होंने औलाद की तमन्ना में, लालच नहीं कह सकते, लालच सही वर्ड नहीं है, औलाद की चूंकि उनको तमन्ना थी, तो औलाद की तमन्ना में हुनालिका दअा ज़करिया रब्बहू, वहीं से उसी मकाम से जहाँ पर उन्होंने बेमौसमी फल देखा, उन्होंने अपने रब को पुकारा, यानी दुआ की। काला, और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी हबली, यहाँ भी रब्बी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो दुआ का तरीका याद रखें, जब कभी भी अल्लाह से दुआ मांगे तो रब्बी का लफ्ज़ इस्तेमाल, रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। उर्दू में करे तो या रब कहें, ऐ रब कहें, ये बड़ी बेहतरीन लफ्ज़ याद रखें। उन्होंने कहा रब्बी हबली मिन लदुनका, ऐ मेरे रब तो अपनी तरफ से ज़ुर्रियतन तय्यबतन, पाकीज़ा औलाद अता फरमा। अपनी तरफ से मतलब औलाद देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। ऐ अल्लाह तो अपनी तरफ से मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू ही दुआ को सुनने वाला है, तू ही दुआ को सुनने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, औलाद का ना होना ये बड़े बड़ी मुसीबतें, जैसे कहा साली का पड़ जाना, औलाद का ना होना ये बड़ी बड़ी मुसीबतें, परेशानियाँ हैं, छोटी परेशानी नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद हो। तो अब यहाँ पे एक नुस्खा याद रखें कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है तो क्या तरीका है औलाद होने का। एक तो ये दुआ याद कर लें, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, और भी हज़रत इब्राहीम की दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये सब औलाद मांगने की दुआ है, जिस दुआ पर अल्लाह ने औलाद दिया, जिस दुआ पर अल्लाह ताला ने उन लोगों को, जिन लोगों ने दुआएं मांगी, अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा। तो जाहिर सी बात है, अभी हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें एक इल्म हो ना कि अगर किसी भाई को या हमारे साथ मामला हो, या हमारे रिश्तेदार में कोई हो जिसको औलाद नहीं हो रही है और हर तरह के इलाज करवा रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहे, उसको रोकना नहीं है। उसके अलावा क्या सटीक इलाज है, ये इलाज मिल गया आपको। यहाँ एक हकीमी यानी हिकमत हमें पता चलेगी कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है तो क्या तरीका अपनाना है, यही तरीका अपनाएं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह तो अपनी जानिब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। यहाँ भी तय्यबतन लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ अल्लाह से औलाद ना मांगा जाए। बहुत से हमारे भाई जिनको दीन का इल्म नहीं रहता है, वो अल्लाह से अपनी नमाज़ों में दुआ करते हैं या जुमा की नमाज में अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह दे देता है। अब क्या होता है, वो औलाद नाफरमान हो जाती है, नाफरमान हो जाती है, तो जो हमने मांगा अल्लाह ने दे दिया। इसीलिए दुआ का भी एक तरीका, एक बेहतरीन अंदाज अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में हमें बतला दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद अता फरमा, है ना। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, पाकीज़ा औलाद अपनी जानिब से अता फरमा। दोनों पैगंबर ने औलाद तो मांगी अल्लाह से, कॉमन चीज ये थी कि औलाद भी मांगी और ये थी कि पाकीज़ा यानी नेक औलाद चाहिए। पाकीज़ा का बहुत माना कर सकते हैं, अगर तू लड़की दे तो पाक दामन लड़की दे, अच्छी लड़की दे, जो हया वाली हो, पाकीज़ा हो, उसे अपने हया की बड़ी परवाह हो, नकाब और इसी तरीके से पर्दे का एहतमाम करे, ये भी तो पाकीज़ा का माना हो सकता है, बहुत से माना हो सकते हैं। तो औलाद मांगने का यही तरीका, अगर किसी को औलाद ना हो तो ये बेहतरीन नुस्खा है, ये सिर्फ जुबानी और कहानी या कहावत नहीं है, ये हकायक है, क्योंकि कुरान की आयत है और कुरान पर किसी को संदेह नहीं हो सकता, किसी को शक कुरान पर नहीं हो सकता। बकिया इसके अलावा जो औलाद के जो तरीका हम अपना रहे गैर शरई तरीका, वो बिल्कुल गलत है, वैसे उस तरीके से अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दिया। अब इन्होंने दुआ मांगी, आयत नंबर 39 में अल्लाह ने कहा 39 में, फनादतहुल मलाइकतु, जब इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह तू अपनी जानिब से मुझे औलाद अता फरमा, तो फरिश्तों ने उनको पुकारा, किनको पुकारा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने पुकारा, फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने पुकारा, वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, हालांकि उस हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने आवाज़ लगाई तो वो उसी हुजरे में नमाज पढ़ रहे, वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, इस हाल में कि वो खड़े होकर उसी हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे, और फरिश्ते ने आवाज़ लगाई, ये नमाज की हालत में थे और खड़े थे, रुकू सजदा में नहीं, यानी क़याम में थे। फरिश्तों ने क्या कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, बेशक अल्लाह ताला तुमको यहया की खुशखबरी देता है,
उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, दुआ मांगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना, तो कुरान ने भी गवाही दे दी कि उनको औलाद हो गई, बेटा ही हुआ। क्या नाम था? हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जो नबी थे, ये भी नबी थे, नबी के यहाँ नबी की पैदाइश हो गई। मुसद्दिकम बिकलिमतिन, जो बिकलिमतिन मिनल्लाह, जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाली थी। अल्लाह के कलमा कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह कहते हैं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए और लफ्ज़ कुन के जरिए पैदा होते। कुन को समझते हैं? अल्लाह को कोई काम करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, पहले कुन, कुन का मतलब हो जा, अल्लाह कहेगा हो जा, बस हो जाएगा। अरबी में कहते हैं कुन फयकुन। अल्लाह किसी काम को, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखें कि अल्लाह हमें औलाद नहीं होगी, हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम चेन्नई गए, मद्रास गए, हैदराबाद गए, कलकत्ता गए, मुंबई गए, हर डॉक्टर के पास गए, हर तरह के टेस्ट करवा लिए, है ना, हमारे लिए मुश्किल है ना। अल्लाह के लिए क्या है? अल्लाह कहेगा अच्छा मेरा बंदा पुकारा, कुन हो जा, अगले महीने उसका हमल ठहर जाएगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने हदीस सल्लल्लाहु को कलमा इसलिए कहा कि लफ्ज़ कुन की जगह उनकी पैदाइश हुई, हो जा तो पैदा हो। तो जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला है, यानी यहया अलैहिस्सलाम सीनियर थे ईसा अलैहिस्सलाम, पहले आए थे दुनिया के अंदर। वह सैयदन, और सरदार थे, वह हुसूरन, और क्या थे? बहुत गुनाहों से बचने वाले थे। हुसूरन ज़ाबिते नफ्स कहते हैं, यानी अपने नफ्स को बहुत जब्त में रखने वाला, निज़ाम में रखना, सिस्टम की तरह चलने वाला, गुनाहों से बचाने वाला। अगर हम अपने आप को गुनाह से बचा लें तो हम भी ज़ाबिते नफ्स हैं कि हम गुनाह में मुलविस नहीं हैं। वो थे यहया अलैहिस्सलाम। वह नबी मिन सालिहीन, और बहुत नेक नबी थे। इसका मतलब ये नहीं कोई और नबी नेक नहीं होता। सालिहीन इजाफा हो गया उनके साथ उनकी इज्जत में, कि नेकोकारों में से थे, नबी भी थे, नेकोकारों में से भी थे। ये अल्लाह ने उनको औलाद की खुशखबरी दी, किनको? ज़करिया अलैहिस्सलाम। अब आयत नंबर 40 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने तासुरात पेश कर रहे हैं। वो अपने बारे में बेहतर जानते थे। दुआ तो उन्होंने मांगी अल्लाह से। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों ने कहा कि ऐ ज़करिया, तेरे लिए खुशखबरी है, युबश्शिरू का, अल्लाह तुमको खुशखबरी दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी। अभी हुआ नहीं है, होगी, पैदाइश होगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा आयत नंबर 40 में, क़ाल रब्बी, उन्होंने कहा मेरे रब, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? ऐ अल्लाह, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? वक़द बलगनियल किबर, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया। बलगनियल किबर, बुढ़ापे को पहुंच गया, मैं तो बहुत ज़ईफ़ हो गया हूँ, एजेड हो गया। बात समझ आ गया? असल में क्या होता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है या बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लग जाता है तो उसकी नफसानी ख्वाहिशात कम हो जाती है। यानी बच्चा जिस हम बिस्तरी से और जिस नुतफे से पैदा होते हैं, वो चीज़ें, वो फीलिंग अब बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। ये तो हर कोई जानता है, साइंस भी इस बात को कहता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इस बात को जानते थे कि फरिश्ते ने आकर कह दिया, दुआ तो मैंने मांग लिया कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे, और मैंने यकीन के साथ मांगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यकीन के साथ मांगा कि अल्लाह जानता है कैसे औलाद देगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि चलिए हमने एक चीज़ के लिए अप्लाई किया, तो पास हो गया वो चीज़, क्या ठीक है, अल्लाह ताला आपको एक लड़का देगा। अब वो परेशान हो गए, मैंने तो मांग लिया, मुझे चाहिए भी, तो कोई शक नहीं, अल्लाह देगा भी इंशाअल्लाह, अल्लाह कादिर है देने पर। लेकिन अल्लाह क्या सूरत में देगा? मैं तो बूढ़ा हो गया, सूरत क्या होगी वो चीज़ मिलने की? उन्होंने कहा कि अल्लाह, अन्ना क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मुझे लड़का कैसे हो सकता है? वक़द बलगनियल किबर, हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वह इम्राअती आकिर, और मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी वो बाँझ है। आकिर मैंने होता है बाँझ, यानी बाँझपन की वजह से इनको औलाद नहीं होती। अब आप एक और चीज़ देख लें, हम लोग क्या जानते हो, बाँझ जो औरत हो जाए उसको औलाद नहीं होगा, हकीकत यही है। लेकिन अल्लाह अगर देना चाहे तो आज बाँझ कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह अगर देना चाहे तो सब चीज़ें जो है बेकार की बेकार रह जाएंगी। उन्होंने दोनों बातें बयान कर दी, अल्लाह मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरी बीवी बाँझ भी है, काला। तो अल्लाह ने कहा कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह इसी तरीके से जो चाहता है करता है। कितना बेहतरीन जवाब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कहा कि ठीक है बाँझपन दूर कर देंगे, अल्लाह ने नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारे बुढ़ापे को जवानी बदल देंगे। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने कहा क्या क्या कहा? कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह जो चाहता है करता है। तो अब आप सोचें कि आजकल के जो हालात हैं, जो बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कोई नई नवेली लड़की शादी करके आए और 2-3 साल में उसको औलाद ना हो तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? करने वाला मुसलमान,
सलूक करने वाला नबी से मोहब्बत करता है, ये बुरा सलूक करने वाला अल्लाह के लिए सामने नमाज ही पढ़ रहा है। क्या ऐसा सलूक किया जा सकता है औरत के साथ? उसके हाथ में है? औलाद किसके हाथ में है? नबी कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन मैंने तुझसे दुआ मांगी है। अल्लाह कह रहा है कज़ालिक अल्लाह यफ़अलु मा यशा, तुम्हारा काम है दुआ करना, नवाजना, अता करना, देना, ये अल्लाह का काम है। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई इस तरह की औरत है, शादी की 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल भी हो गया, औलाद नहीं हो रही है, तो एक मोमिन कभी भी नाउमीद नहीं हो सकता, है ना। एक मोमिन इसको अल्लाह के हवाले कर देगा इस मामले में, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं है। और अल्लाह इस हिकमत को जानता है, हम नहीं जानते। मान के चले कि अल्लाह ने आपको लग रहा है कि नहीं अल्लाह ताला हमारे साथ नौज़ुबिल्लाह ज़्यादती कर रहा है, सबको औलाद दे रहा है, अब मुझे नहीं दे रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए, और अल्लाह आपको औलाद नहीं देना चाह रहा है। इसकी हिकमत को अल्लाह जानता है क्यों नहीं देना चाह रहा है। हो सकता है कि अल्लाह आपको औलाद दे, आप बड़े लाड प्यार से उसकी परवरिश करें, और जवानी में एक्सीडेंट करके आपके सामने मर जाए, वो दुख बर्दाश्त होगा? एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे को कांधा देना जनाजे का कितना मुश्किल काम है। एक्सीडेंट ना करे, बीमारी से मर जाए। बहुत से ऐसे हालात देखते हैं कि बाप जिंदा है और जवान औलाद इंतकाल कर दे। हो सकता है कि अल्लाह फ्यूचर को, हकीकत में अल्लाह मुस्तकबिल को जानता है, इस वजह से अल्लाह आपको नहीं दे रहा है कि जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा होगा उसका मुस्तकबिल ये है। उस वक्त तुमको ज़्यादा तकलीफ होगी, उस वक्त तुम अपने आप को बेसहारा महसूस करोगे। एक ही औलाद थी, वो भी चली गई, इसीलिए अल्लाह आपको नहीं देना चाह रहा। हम मोमिन हैं तो हम हर मामलात में खैर को तलाश करें, मसलहत को समझने की और परखने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसी तरीके से अल्लाह जो चाहता है करता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उन्होंने कहा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, अब तो बात खत्म हो गई कि आप बूढ़े हैं या आपकी बीवी बांझ है, आप उन चीज़ों को भूल जाएं। हमने तय कर लिया, अल्लाह के रब ने तय कर लिया आपको लड़का होगा, लेकिन इत्मीनान नहीं होता इंसान की फितरत में उजलत, इत्मीनान नहीं हो रहा है। काला आयत नंबर 41 में अल्लाह ने कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, काला रब्बी जअल्ली आयतन, ऐ अल्लाह मुझे एक निशानी बता दे मेरे बच्चा होने की, इतना तो कम से कम कर दे। तो यही इंसान की हमारी आपकी फितरत है कि अल्लाह जब कोई चीज़ देता है तो हम उसमें शुक्राना अदा करके और ज़्यादा जल्दी मचाते हैं कि और ये हो जाए, वो हो जाए, कब हो जाए, अभी हो जाए, बल्कि आज ही हो जाए तो परसों ना हो, कल हो जाए, है ना। ये हमारी फितरत है और ये अम्बिया के साथ भी थी। इससे एक सबूत ये मिलता है कि अम्बिया भी इंसान थे, तभी ना हम लोग फितरत उनके अंदर हैं। अब उन्होंने कहा कि अल्लाह काला रब्बी अल्ली आयतन, अल्लाह ठीक है तू औलाद देगा, एक निशानी बता दे। उन्होंने कहा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, काला तो अल्लाह ने कहा आयतु का, तुम्हारी निशानी ये है कि अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़न, कि तुम 3 दिन तक किसी से बात नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे के। अल्लाह ने एक निशानी बताया कि तुम बोलना भी चाहोगे बोल नहीं पाओगे, 3 दिन तुम बोल ही नहीं पाओगे, यानी तुम जुबान रखते हुए भी बेजुबान, लेकिन इशारे से बोल पाओगे। पानी दीजिए, इशारा करोगे, जाना है बाथरूम जाना है, इस्तिंजा करने जाना है, इशारे सारे बात होगी, खाना खाना है सब इशारे। 3 दिन तक अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम निशानी जानना चाहते हो तो निशानी ही ले लो। अब हमें लगता है मुझे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम शायद बोल कर फंस गए, अब अल्लाह ने वादा कर दिया देवे करेंगे, क्या जरूरत है निशानी मांगने की, 3 दिन खामोश रहना होगा। समझ रहे ना, ये मतलब हंसने के लिए है, वरना पैगम्बर पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, और पैगम्बर तो हम लोग से बेहतर। अब वो सोच रहे होंगे कि निशानी कुछ अच्छी चीज होती तो अल्लाह ने अजीब और गरीब निशानी दे दी, बोले 3 दिन तुम बात ही नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे की। और जब तुम बात नहीं करोगे तुम क्या करोगे, वज़्कुर रब्बका कसीरन, बहुत ज्यादा अपने रब की जिक्र करना मन में, बोल तो पाओगे नहीं। जब तुम 3 दिन गूंगा बनोगे तो तुम्हारे काम भी एक होमवर्क दे रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वज़्कुर रब्बका कसीरन, खूब कसीर बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना, वसब्बिह और अल्लाह की तस्बीह बयान करना, बिल अशी वल इब्कार, सुबह और शाम, सुबह व शाम दिन रात तुम अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना। ये निशानी अल्लाह ताला ने बयान कर दी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 42 में, व इसकालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाक। अब वहाँ का मामला खत्म हो गया, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी इमरान की बीवी, उनसे मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हो गई। मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया, उन्होंने किफ़ालत की, उनकी मतलब परवरिश की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी वो फल देख कर कि बेमौसमी फल अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो अल्लाह मुझे भी औलाद दे देगा, अपनी ख्वाहिश तमन्ना के इजहार के तो अल्लाह ने भी उनको याह्या अलैहिस्सलाम की शक्ल में औलाद दे दिया।
अब फिर मामला आ रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा वइज़ मलाइकतु, और जब फरिश्तों ने कहा या मरियम ऐ मरियम इन्नल्लाह इस्तफाकी, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया, इंतखाब कर लिया, मुंतखब कर लिया, वतहरीकी, और तुझे पाक कर दिया, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, और दुनिया की तमाम औरतों में से तुमको चुन लिया, दुनिया के तमाम औरतों में से तुमको चुन लिया। असल में अहदीस के अंदर चंद औरतों का तस्करा है जिनका मकाम बहुत बुलंद है। उसमें से एक ये मरियम अलैहिस्सलाम है, दूसरी फिरौन की बीवी आसिया है, उसके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आप की पहली बीवी थी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, और एक आपकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये 4-5 ऐसी खातून हैं जिनको एक दूसरे पर फजीलत हासिल है, या अगर ये भी कहे ज़्यादा दिमाग उसे लगाने की जरूरत नहीं, ये 5 ऐसी खवातीन हैं जिनका मकाम और खवातीन के मुकाबले में ऊंचा है, एकदम आसान मुख्तसर। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि तुमको तमाम अला निसाइल आलमीन, तमाम जहान की औरतों में अल्लाह ने तुमको चुन लिया। इसका मतलब ये नहीं कि खदीजा का मकाम कम है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे नज़दीक खदीजा से बेहतर कोई और नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा। आयशा सिद्दीक़ा के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि हज़रत आयशा की फजीलत दुनिया की तमाम औरतों में वैसे ही है जैसे तमाम खानों में शरीफ की फजीलत है। शरीफ उस ज़माने में खाना होता था, सा रा या दाल, जो बहुत मक्खन और घी वगैरह से और मेवे वगैरह से मिलाकर बनाए, गोश्त और रोटी में तोड़ कर बनाए जाते, एक स्पेशल खाना हुआ। जैसे आजकल के ज़माने बिरयानी, तो उस ज़माने के एक स्पेशल खाना था, तो सब कोई नहीं खाता। तो ये फजीलत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बयान की गई। तो बहरहाल यहाँ पे ये कि 5 औरतें जो हैं इनकी बड़ी फजीलत है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में वक्तन फ़वक्तन बयान किया है। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि या मरियम उक़्नुती, ऐ मरियम जो अपने रब का फरमाबरदार हो, या मरियम उक़्नुती रब्बिकी, तो अपने रब की मती फरमाबरदार बन जा। उसके अल्लाह ने कहा वस्जुदी, और अपने रब के सामने सजदा कर, वरकई मार्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यहाँ रुकू से मुराद दोनों में है, एक रुकू होते हम लोग करते हैं, एक रुकू में झुकना, यानी हमेशा अल्लाह के सामने झुकते हैं हर मामला में। तुम्हारी ख्वाहिशात है, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म तुम्हारे ख्वाहिशात के खिलाफ है, तो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दो, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ, ये माना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है आयत नंबर 44 में, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये गैब की सारी खबरें हैं ऐ मोहम्मद, हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि जो भी पिछली बातें हो रही थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की, यहया अलैहिस्सलाम की, इमरान की बीवी यानी ईसा मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की, उस वक्त अल्लाह के रसूल थे, उस वक्त थे अल्लाह के रसूल नहीं ना थे, कुरान ना आपके ऊपर उतरा, ऐसी कुरान में पिछले लोगों की बातें बयान हो रही थी। तो अल्लाह देखिए अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये सारी की सारी गैब की खबरें हैं, नूही इलैका मोहम्मद, हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। इससे एक बात का सबूत ये मिल रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। यहाँ लफ्ज़ गैब इस्तेमाल करके अल्लाह ने इस्तिस्ना कर दिया कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये सब गैब की खबरें। गैब मतलब हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो चीज़ें हो गई। गैब मतलब क्या, हम यहाँ पे है ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कलकत्ता में कुछ हो रहा है तो नहीं जानते, हम लोग को नहीं मालूम क्या चल रहा है वहाँ पे, किस घर में, किस ऑफिस में, किस कारखाने में क्या हो रहा है। यही तो गैब है, जो हमें कोई बताए नहीं, जरिया ना बने और हमें पता नहीं, पता हो जाए जरिया से तो गैब नहीं हुआ। किसी ने फोन करके बता दिया कलकत्ता है बहुत बारिश हो रही है, हम जान गए कि हाँ भाई कलकत्ता है बारिश हो रही है, तो जरिया क्या बना, किसी ने कॉल किया, खबर दी। तो ये सबूत, ये आयत कि ऐ मोहम्मद की सब गैब की खबरें जो हम आपको पहुंचा रहे हैं आपकी तरफ, वही कर रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम की जगह पहुंचा रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात जानते तो ये लफ्ज़ अल्लाह ताला को लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए ना, लिखने की जरूरत नहीं। वमा कुंता लदैहिम, अल्लाह ने कहा जबकि आप वहाँ मौजूद नहीं थे, ये भी अल्लाह ने आगे कहा, ऐ मोहम्मद ये सब गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ पहुंचा रहे, वही कर रहे, जबकि आप वहाँ मौजूद नहीं थे। इज़ युल्कूना अक़लामुहुम अय्युम यक़्तुलू मरियमा, जबकि वो अपने कलमों को रख रहे थे कि मरियम की किफ़ालत कौन करेगा, लड़ रहे थे कि मरियम की किफ़ालत कौन करेगा। वमा कुंता लदैहिम इज़ यख़्तसिमून, और आप उस वक्त भी मोहम्मद मौजूद नहीं थे जब ये आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि मरियम की किफ़ालत कौन करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, मरियम अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, क़ालतिल मलाइकतु, आयत नंबर 45 में, और जब फरिश्तों ने कहा
या मरियम, ऐ मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुमको खुशखबरी दे रहा है, बेकलिमतिन, एक कलमे की। यहाँ अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, लिया है कलिमा के बाद लिया है। कलिमा इसलिए कहते हैं कि कलिमा लफ्ज़ कुन से, ये बात याद रखें, कलिमा लफ्ज़ कुन से है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, अल्लाह ने कहा कुन हो जा, फयकुन, तो हो गया, इसीलिए उनको कलिमतुल्लाह कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ताला तुमको खुशखबरी दे रहा है एक कलमे की, मिन हुस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम, जिनका नाम ईसा इब्न मसीह, ईसा इब्न मरियम होगा, इनका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। अब यह एक सवाल है कि मसीह किसको कहते हैं? मसीह हो कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन में सियाहत करने वाला। आप लोग उर्दू जानते हैं ना, उर्दू, तो उर्दू में एक लफ्ज़ आता है सयाह, पढ़े सयाह, सयाह मसीह से, सयाह मसीह, सयाह किसको कहते हैं? सयाह जो ज़मीन में सियाहत करता है, घूमते फिरते रहता है, जिसने हिंदुस्तान की खोज की थी, आर्य लोग जो आए थे और हिंदुस्तान की खोज किए थे, लोग सयाह थे, ज़मीन में घूमते फिरते रहते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, अगले साल वहाँ चले गए। सयाह से मसीह थे। एक माना होता है मसीह का ज़मीन में खूब कसरत से सियाह घूमने वाला, और एक माना है अपने हाथ को फेरने वाला, छूने, मसा करते हैं ना, मसा, मसा मतलब हाथ को छू रहे हैं और छू को वापस ला रहे हैं, मसा ये मतलब होता है छूना। तो मसीह इस वजह से कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा ये दिया था कि आप मुर्दों को भी जिंदा करते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, और क्या करते थे, अपने हाथ को इसे फेर देते थे। तो मसा मन होता है फेरना, छूना। मसीह का दो माना बयान किया गया, एक ज़मीन में खूब सियाहत करने वाला और एक हाथ को फेरने वाला। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को फेरते थे, तो अगर कोई बीमार है तो उस बीमारी ठीक हो जाती थी। लेकिन एक नुक्ता याद रखें, ठीक वो नहीं करते थे, अल्लाह करता था, अल्लाह उनको हुक्म देता था, तो अपने हाथ को फेरते थे तो बीमार की बीमारी ठीक हो जाती थी। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है, और उसी को क्रिश्चियन जो होते हैं ईसाई यस्सु मसीह कहते हैं, समझ गए ना, यस्सु मसीह कहते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि उनका नाम ईसा इब्न मरियम होगा, मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती, जो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाले होंगे। अल्लाह ने कहा इज्जत वाले होंगे। इसीलिए कभी भी जो दुश्मनाने इस्लाम है, जो तनकीद करते हैं कि अल्लाह ये बगैर बाप के कैसे पैदा होगी, नाउज़ुबिल्लाह। आज के ज़माने में अगर कोई औरत हमल से हो जाए तो हम उसके बाप का नाम पूछते हैं, भाई इससे आप हमल हुई हैं, कौन है इसका बाप? और अगर बाप का नाम ना बताइए तो गलत माना जाता है कि नहीं माना जाता है? तो क्रिश्चियन जो होते हैं, जो इस दुश्मनाने इस्लाम होते हैं, इसी चीज़ को मुद्दा बनाते हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कैसे नबी हो सकते तो बगैर बाप के पैदा हुए? तो अल्लाह ने उनकी शहादत दी, वजियन फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी इज्जत वाले हैं और आखिरत में भी इज्जत वाले हैं, ये अल्लाह ने बयान किया। तो मिनल मुकर्रबीन, और वो मेरे करीब कराबतदार में हैं, वो अल्लाह के करीबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम। आज का दर्स मुकम्मल हो गया। इसमें जो भी सवाल हो आज के दर्स के मुताबिक, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने बताया ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो नमाज़ें अदा करते हुए दुआ करते हैं, तो नमाज से क्या तरीका था उसको? सब सवाल ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम है ना, वो क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो अपनी जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, जबकि फरिश्तों ने पनारतुल मलाइका, तो फरिश्तों ने उनको आवाज़ दी। तो हर कौम में नमाज थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तरीके अलग अलग थे। जो तरीका हमें और आपको मिला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। रहा उनके नमाज का तरीका, तो वो कहीं बयान नहीं हुआ हदीस के अंदर, लेकिन है कि वो भी रुकू करते थे, वो भी सुजूद करते थे, कहीं पर तफसील बयान नहीं हुआ है तो पहले के पैगंबर इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। लेकिन रुकू सजदा इस बात की तरफ इशारा है कि हम हमारी तरह नमाज पढ़ते होंगे। और ये दूसरा सवाल है, आपने मुझे बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करते थे मुर्दों को, उनकी मुद्दत क्या थी, कितने दिन जीते थे? क्योंकि नहीं, जो लोग जिंदा होते थे उनकी मुद्दत क्या थी, या फिर गवाही देते थे? सवाल ये कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो वो मुर्दे जो जिंदा होते थे वो कितने दिन में जिंदा रहते थे? तो ऐसा तो कुछ बयान नहीं हुआ। ये मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि हाथ फिरते थे तो जिंदा मुर्दा जो है जिंदा हो जाते थे। हो सकता है कि वो अपने आखिरी उम्र तक जिंदा हो, जहाँ अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दे रखी थी। लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि जिंदा होने के बाद 10 साल या 5 साल या 2 महीने 4 महीना बस उतना ही जिंदा रखने के मर जाते थे, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़े क्या ऐसा कुछ? हिदायत में सुन रहे थे कि अगर मतलब
वो जिंदा होते तो वो गवाही देते थे उस चीज़ का कि अल्लाह के नबी, और फिर वो क्योंकि कुरान क्या है कि जो एक बार दुनिया से चला गया वापस नहीं आ सकता, तो वो सिर्फ गवाही दे के वापस चले जाते थे। ना इसमें ये चीज़ें फिर इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि शरीयत मुकम्मल हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वाला वो वाक़या होगा कि कोयतूर पर मूसा अलैहिस्सलाम गए 40 लोगों को लेकर, तो उन्होंने जीत पकड़ लिया कि नहीं अल्लाह को देखेंगे, तो एक बिजली कड़की सब के सब मर गए, मरे ना सब। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि नहीं अल्लाह छोड़ दीजिए, माफ़ कर दो, तो उन्होंने दोबारा उनको जिंदा कर दिया। तो पहले चीज़ें होती थी, सूरह कहफ के बारे में पढ़ेंगे, कहफ वालों का वाक़या, तो 300 साल के बाद वो जिंदा हो गए। ये चीज़ें पहले होती थी, अब नहीं होगी। जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, ये चीज़ कि नहीं एक बार जो आदमी दुनिया से चला गया दोबारा नहीं आएगी, ये अब के लिए है, लेकिन पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। 300 साल बाद वो जिंदा हुई, समझे ना। सहाबे कहफ के बारे में बात है। नजर मारने के बारे में इस्लाम नजर मारने के बारे में इस्लाम का क्या मतलब क्या है, तालीम है इसकी। देखिए नजर, सवाल ये कि नजर मानने का क्या तरीका है, और नजर अगर माने तो उसके पूरा करने का क्या मसला है। देखिए नजर जायज़ चीज़ों के लिए मांगी जाती है, नाजायज़ चीज़ों के लिए नहीं मांगी। नजर जब मांगे, नजर मांगना कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे कोई मुसलमान है, कोई हम में से कोई है, और किसी चीज़ के बारे में वो लगा हुआ है कि उसका ये काम हो जाए किसी तरीके से, तो उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के नज़र मान लिया कि अल्लाह अगर मेरे ये काम हो जाएगा तो मैं 2 नफिल रोज़ा रखूँगा, ठीक है। तो जायज़ चीज़ की नज़र मांगी, जिस चीज़ की नज़र मांगी जा रही है वो भी अच्छी चीज़ है, और जो पूरा करने के लिए नज़र के बारे में जो शर्त रहता है कि मैं ये करूँगा, वो भी जायज़ होनी चाहिए, समझ गया ना। अब जैसे किसी ने नज़र मानी कि अगर जैसे किसी का बच्चा पैदा हुआ, तो नज़र मानी कि अल्लाह अगर ये ठीक हो जाए, शिफायाब हो जाए, तो मैं हर साल इसका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। अब सोचिए कि बर्थडे इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ की वो नज़र मानना भी जायज़ ही नहीं है ना। तो नज़र अच्छी चीज़ के लिए माने, कोई अच्छी चीज़, आप लोग जैसे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नज़र माने कि अल्लाह हमें अगर जॉब हो जाए तो हम 10 मिस्किन को खाना खिलाएं, अपने दोस्तों को खाना खिलाएंगे। तो नज़र अच्छी चीज़ के लिए, जायज़ चीज़ों के लिए मांगे, और जायज़ चीज़ पर मांगे तो उसको पूरा करें, गलत चीज़ पर नहीं। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह दोबारा जब तदरीस का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत के लिए एक दुआ है, कहीं पढ़े थे शायद, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये कितना हद तक सही है नहीं है इसके बारे में बताना। ये जो आयत शायद आप बता रहे हैं, हमको लग रहा है शायद सहाबा के दरमियान उनकी मोहब्बत थी, कहाँ की आयत है पता है? अच्छा ठीक, उसकी हम तहकीक कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई दुआ नहीं है मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत। हाँ, ज़ुबानी तौर पे उर्दू में या जिस लैंग्वेज को हम जानने वाले, हम तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दे। या हम मिसाल भी दे सकते हैं कि जैसा तू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बीवियों के दरमियान उसी की मोहब्बत थी, वैसे हमें भी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत करने की तौफीक दे। और जो निकाह होता है जिसमें तो एक दुआ है ना कि बारकल्लाहु लका बारक अलैकुम व जमा बैनकुम फी खैर, कि हर कोई दुआ दे कि अल्लाह ताला आप दोनों को खैर पर जमा करे, बरकत दे, नेक और साले औलाद अता फरमाए, सारी चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन स्पेशल कोई दुआ शायद अभी तक हमको नहीं मालूम, क्योंकि अगर मालूम होती तो हम जरूर पढ़ते। हमें कोई क्वेश्चन है इसी से ऐड ऑन एक क्वेश्चन है, जैसे अगर वाइफ से या बीवी से कुछ भी तकलीफ पहुंचता है, जैसे वाकई ईला हुआ था, हाँ, जहाँ पे 30 दिन के लिए वो तो गुजर चुके पहले पहले चले गए, तो ये सोच के तसल्ली ले सकते हैं कि औरत की फितरत में है मतलब जो भी हो डिस्प्यूट करना या देखिए उनकी सवाल वाइफ बहुत के साथ में ऐसा हो सकता सवाल बहुत बेहतरीन है, और जाहिर बात है कि जो खवातीन भी ऑनलाइन हैं उन और शादीशुदा हैं उनको भी सुननी चाहिए। सवाल ये है कि कभी मान लीजिए कि बीवी से अनबन हो गई या तू मैंने हो गई, ठीक है, तो शौहर जो है अगर रूट कर थोड़ा सा अलग चले जाए, कहीं चला जाए, तो क्या जा सकता है, या ये मान लेके चलिए उनकी फितरत ही ऐसी है तो क्या किया जाए। देखिए मियाँ बीवी के दरमियान तकरार को लेकर या उनके दरमियान अनबन को लेकर शरीयत इस्लामिया ने बहुत बेहतरीन रोशनी डाली है। आपको हैरानी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तू मैं होता था उनकी वीडियो से, तो आप जाकर मस्जिद नबी में सो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो जाता था अपनी वीडियो से अनबन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल के कहाँ चले जाते थे, मस्जिद नबवी में, जाकर वहीं लेटे रहते थे। तो
इस्लाम ने कुछ चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन और अच्छे अंदाज में बताया कि औरतों के अंदर जो है ये इनकी फितरत के अंदर ही ये चीज़ मौजूद है, टेढ़ापन। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि सब औरतें बहुत टेढ़ी होती है या बहुत सीधी होती, नहीं, ये फितरत की बात हो रही है। चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, जैसे मौत, हम चाहे ना चाहे लेकिन मौत आके रहेगी, बात समझ आई ना। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि औरतों के अंदर तलखी या टेढ़ापन ये फितरी तौर पर डाल दी गई। तो शौहर की जिम्मेदारी है कि इस हकीकत को नजरअंदाज ना करें। मामला बिगड़ता जानते कहाँ पे, हम इस हकीकत को भूल जाते हैं। जैसे औरत बेजा मुतालबा करनी तो शरीयत ने रहनुमाई की है कि आप शौहर की कमाई यानी उनकी आमदनी के हिसाब से खर्च करें, शौहर की माल दौलत की उनकी इज्जत की हिफाजत करें, उनके बच्चों की परवरिश करें, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक अनबन और तूतू महमे की बात है तो वहाँ पर अगर इस तरह का हालात हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा कि तुमको हो सकता है कि औरत की एक चीज़ बुरी लगती है लेकिन चीज़ अच्छी लगती है, ये भी हदीस है। तो बुरी को दिमाग में जगह मत दे कि हमको ऐसे बोलती, मेरे घर वालों को ऐसे बोलती, मुझे ताना मारती है, मुझे ये करती है। उसकी अच्छाई को ज़हन में लाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इसको क्या नाम लिखवा लेना इसकी अच्छाई को याद रखें। देखिए वो जो उनके जरिए जो हो रहा है, अब औरतों के अंदर एक सवाल आ सकता है कि जब सब सारी औरतें ऐसी थी तो फिर अल्लाह के रसूल की बीवियाँ ऐसे क्यों नहीं हुई, तो भी तो टेढ़ी पैदा हुई हैं। तो जवाब सवाल ही में जवाब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बीवियों को पता था कि हम टेढ़ी मर्द की टेढ़ी किसी से पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी तालीम उनको दे रखी थी कि टेढ़ी फितरती तौर पर टेढ़ापन होने के बावजूद अपने आप को सुधार रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस तरह का मामला नहीं था। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास बैठते थे तो हज़रत खदीजा को याद करने लगते थे, चूँकि पहली बीवी थी और उस वक्त हिजरत के मौके पर बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने देखी दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। तो अक्सर उनका जिक्र करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ इस कदर मोहब्बत करते थे कि अगर कोई बकरा बकरी ज़बह करते थे तो हज़रत खदीजा तो थी नहीं, इंतकाल कर गई थी, तो बकरा बकरी ज़बह करते थे तो उनके सहेलियों को भिजवा देते थे, जाओ हज़रत खदीजा के सहेलियों को दे दे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फूल जाती थी। जिक्र करते थे कि हज़रत खदीजा थी तो गारे हिरा में इस तरह का मामला हुआ, गारे सौर में, तो अलग हज़रत आयशा कहती जाइए तो ही चल जाइए, उन्हीं के पास चल जाइए, यहाँ का बैठे। तो फितरी चीज़ है औरतों के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। तो कभी भी अनबन हो औरतों के लिए भी जरूरी है कि जो उनको कहा गया है कि अगर उनका शौहर नाराज हो जाए तो अपना हाथ, उनका हाथ, अपने शौहर का हाथ अपने हाथ पे ले ले और कहे कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं। ये तालीम है कि नहीं इस्लाम की? तो ये औरतों को भी याद रखना है, मर्द को भी याद रखना है। और मर्द कभी भी इस कदर भी गुस्सा ना हो जाए जैसा आजकल थोड़ी सी बात पर तलाक हो जाए, ये चीज़ें सही नहीं है। तो दीन का उसूल याद रखें और शौहर को चाहिए कि ज़्यादा बातचीत हो रहा है, बिगड़ गया है तो वहाँ से सरक लें। क्या दो आदमी आपस में झगड़ा करे, एक आदमी हट देगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप वहाँ से हट जाइए, कहीं चले जाए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला दर्ज जो है शनिचर को 19 तारीख को, 19 तारीख को है ना, 18 तारीख, अगले हफ्ते शनिचर को यानी 18 मई को दर्ज होगा। इसलिए कि 20 मई को हमारे यहाँ यानी हम खुद जाती तौर पर, चूँकि हम हुगली के वहाँ इलेक्शन है तो इलेक्शन में जाना है वोट करने के लिए, इसीलिए अगले हफ्ते जो दर्ज है वो इतवार की बजाय शनिचर होगा जो कि 18 तारीख पड़ रहा है, और वही शाम को 7:15 बजे। और जो भी ऑनलाइन अभी मौजूद है उनसे एक दरखास्त है कि कल जिनकी यहाँ वोटिंग हो रही है आप वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने हक का इस्तेमाल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों की हाजिरी को कबूल फरमा ले और हमारी खताओं को तुम माफ़ फरमा दे। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।